ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही वाणी 6 नवंबर 2025 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। तो बाबा आज के কত সুন্দর মহাবাক্য, যা আমাদের স্মৃতিও খুলে দেবে, স্মৃতির যে বদ্ধ তালা তাও খুলে দেবে এবং আমাদের মানসপটে এক সুন্দর দৃশ্য ফুটে উঠবে, যা আমরা নিজেই তৈরি করব। তো বাবা এই নলেজ আমাদের দিয়েছেন যে এই সঙ্গম যুগে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। তো এখন এই পুরানো দুনিয়া সম্বন্ধ, সম্পদ, বিষয়, সম্পর্ক তা তোমরা পিছনে ফেলে রেখেছ। পিছনে ফেলে ভিজন আমাদের তৈরি করতে হবে। আমরা একটা সরোবরের কাছে এসেছি। সরোবরের এই কিনারাটা হলো সঙ্গম যুগ, আর ওই কিনারাটা হলো সত্যযুগ। এতটাই সুন্দর স্মৃতি, সুন্দর দৃশ্য মানসপটে আমাদের অঙ্কন করতে বাবা বলছে, তো যাতে আমাদের এই জীবনের এত কঠিন, এত পরিস্থিতি, এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তো জীবনের অঙ্ক মেলানোটা খুব সহজ হয়ে যাবে। কারণ পিছনে আছে পুরানো দুনিয়া, তার দিকে আমাদের ফিরে তাকানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বাবা বলছে, কেউ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দেখে, কেউ পিঠ ঘুরিয়ে দেখে। তো তার মধ্যে অনেক গভীরতা আছে যে আমরা কি আসলে মুখ ঘুরিয়ে দেখছি পুরানো সম্বন্ধ যা নড়বড়ে হয়ে গেছে, পুরানো সম্পর্ক যার কোনো বাস্তবে কোনো মূল্য নেই, যাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি, এখন তাকে ছাড়তে পারলেই যে আমাদের ব্যাহদের বৈরাগ্য তৈরি হবে। আর বৈরাগ্য স্থিতি এই সরোবরের এই পার থেকে ওই পার নিয়ে যাবে। গান গেলে চলবে না, উদাসী হলে চলবে না, বিয়োগী হলে চলবে না, এখানে রাজযোগী। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडल बन जाएगी। कारण ब्राह्मण जीवने এমন সব প্রশ্ন আসে, এমন সব পরিস্থিতি আসে, এমন সব অবস্থা তৈরি হয় যখন এই জীবনের স্থিতি একেবারে নড়বড়ে হয়ে যায়। আমি কি এগিয়ে যাচ্ছি, না পিছিয়ে যাচ্ছি, না দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে যাওয়াটাও কিন্তু পথিকের ভালো লক্ষণ নয়, কারণ আমাকে যে অনেক দূর যেতে হবে। তো সেই জন্য বাবা বলছে, এই যে আমাদের
জীবনটাই একটা যাত্রা। এই যাত্রাকে নিজেকে পথিক ভাবলে তো আমাদের তো কোন একটা কথা সারা দিন মনে রাখতে হবে, যাতে আমাদের স্থিতি অন্তত অচল এবং অটল হতে পারে। অচল, অডল। उत्तर, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है। आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो, तो अवस्था अचल अडल हो जाएगी। तुमने अब कलियुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? तुमने अब कलियुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यह है सूक्ष्म पराई। तो बाबा কত প্যার দিয়ে আমাদেরকে ছোট্ট বাচ্চা মনে করে বাবা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তো আমরা কি এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? তাই বাবা বলছে এই পড়া হলো বেহদের পড়া। এটা কোনো স্থূল নয় যে শুনলে শুনলাম, না শুনলেও চলবে, এক কান দিয়ে শুনলাম অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া। তো এটা হলো স্থূল পড়া, কিন্তু এটা সূক্ষ্ম। শোনে মনন চিন্তন করে ভিতরেই রাখতে হবে, বেরিয়ে গেলে চলবে না। আর তার জন্য জীবনের সবথেকে মহামন্ত্র হলো যে পাস্ট ইজ পাস্ট, যা হয়ে গেছে। बीती सोच से तो वो नहीं। एक लक्ष्य बाबा दिएছে, তুমি তোমার এইম অবজেক্টকে দেখতে থাকো আর মঞ্জিলকে দেখতে থাকো। কারণ এখন কলিযুগের সম্বন্ধ, কলিযুগের সম্পর্ক, কলিযুগের বিষয় সম্পদ তা তুমি পিছনে ফেলে এসেছো। ঘাড় ঘুরিয়ে পিঠ ঘুরিয়ে সেটা দেখার কোনো দরকার নেই। এতটুকু অবস্থা যদি তুমি তৈরি করতে পারো, তাহলে এই সূক্ষ্ম পড়াই আরও তোমার অনেক কাজে আসবে। প্রতিটা দিন তোমার কাছে নতুন জীবন মনে হবে। तो बाबा ने जो स्मृति दिया, मानस पटेता एक चित्र तैयार करा, पूरा मुरली बाबा का ध्यान में, याद में हमें सुनना है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास हो जाता है, विचार करो। सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलियुग के भी किनारा पर खड़े हो। यो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। मॉडल तो मॉडल के यदि जानी ताहले तार सम्पूर्ण विषयटाके आमादेर बोझा सहज। कारण मैप देखे जखन गंतव्यस्थल आमरा बुझे उठते पारी, मैप देखे आमरा चोखेर सामने सब किछु भासिए तुलते पारी। तो ठीक तेमोनी এই मॉडल जा आजमिरे आछे, এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির ছোট্ট मॉडल। तो এই मॉडल आमादेर काछे एकटा अनुप्रेरणा। तो सृष्टि तो बड़ी लंबा चौड़ी है ना, तो उसके मॉडल रूप को तो बच्चों ने जान लिया। तो आगे ये नहीं पता था
कि अब कलियुग पूरा होता कि नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में है ना, कलियुग अभी रेग्री पहन रहा है। छोटो बच्चा हामागुड़ी खाচ্ছে, तार एखोनो 40,000 बच्चर बाकी आछे। तो अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए अभी कलियुग का अंत में किनारा पर आकर ठहरना चाहिए। बुद्धि যেন এক জায়গাতেই আটকে না থাকে। আমি আমার ঘর, আমার সম্বন্ধ, আমার সামনের আকাঙ্ক্ষা, এটা হলো হদ। আর বেহদ হলো আমাকে এমন মূর্তি তৈরি হতে হবে, তেমন प्रतिमा আমাকে তৈরি করতে হবে दिव्य गुणे भरपूर। समझना चाहिए तो टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, तो बाकी क्या हिसाब रहा होगा, समय कतटा बाकी আছে, যারা সা रहा होगा। बुद्धि এটাই বলে সময় আর নেই, পরিস্থিতিও এটা বলে সময় আর নেই, तो हमारे इंस्टीट्यूशन बोले समय आर नहीं, बाबाओ बोलते समय आर नहीं। तो आगे पता नहीं था, अभी बाबा ने समझाया है। बाकी कोना आकर रहा है, कोना छोटो एकटू जागाई हमारे अतिक्रम करते हबे। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिला है, तो हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलियुग अंत में आकर पहुँचे हैं। ये तो बुद्धि से समझना चाहिए हमारे अवस्थान कतटुकु और बाकी कतटुकु। अब फिर वापस जाना है अपने घर, तो आने का और निकलने का एक गेट होते हैं ना, जहाँ भी जाए। तो बाबा भी कहते हैं, तो ये भी ऐसे है, सतयुग में जाने का एक गेट होता है और इस सृष्टि पर आने का भी माना एक गेट, और परम धाम में जाना भी एक गेट होता है, इन आउट। तो बच्चों को तो समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है, थोड़ा टाइम है, यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारा पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुराना दुनिया से ममत्व निकाल देना चाहिए, पॉसिबल करना चाहिए। दुनिया वाले समझते हैं इम्पॉसिबल, तो अब तो नई दुनिया में जाना है, तो खुशी तो हमें तो जनरेट करना चाहिए। तो समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, तो यो बुद्धि में रखना चाहिए, यो चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तो ये कहते हैं सदर्शन चक्र। अभी तुम कलियुग में नहीं हो, दुनिया भले कलियुग में है, तुम अभी बेगमपुर के बादशाह हो, तुम बाबा का गोद में हो, संगम योगी ब्राह्मण हो। तो तुमने इस हद को छोड़ दिया ना, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जहाँ थोड़ा समय का सुख मिलता है, चाहे तो इंद्रियों का कोई भी सुख क्यों ना हो। तो बाबा कहते हैं, तो जबकि छोड़ दिया, बाबा का ज्ञान समझ लिया, तो पुराना दुनिया को छोड़ दिया, तो पीछे मुड़ के क्यों देखना चाहिए। हम पुरुषोत्तम संगम पर है, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों। तो बाबा के एक एक क्वेश्चन मार्क तो हमें ठोकना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंतन बाबा सामने देते हैं। तो बार बार बाबा क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, हम देखते हैं, सोचते हैं। तब तो बाबा कहते हैं, बुद्धि योग बिकारी दुनिया से क्यों लगाए। तो ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ना। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपया से एक आना भी समझते नहीं। 16 आना 1 टाका, तो 1 टाकार 1 आनाओ এই বাবার জ্ঞানের যথার্থতা গভীরতা হয়তো আমরা বুঝি না অনেকে। तो सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। तो हम पार निकल गए हैं, तो फिर पिछाड़ी में तो देखे ही क्यों। बार बार बाबा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। किनारा को छोड़ दिया, पिछाड़ी देखते क्यों।
এক মাঝি নৌকা বাইছে, তো দুই মাঝি, এক মাঝি নৌকা বাইছে, তার তো তীরের সাথে তার নৌকা বাঁধা ছিল। রাত্রিবেলা সে নৌকা বাইছে, তার জানাই নেই যে নৌকা বাঁধা আছে। আরেক মাঝি তার নঙ্গর তুলে সে বেয়ে বেয়ে সারা রাত বেয়ে ওই পার চলে গেছে, সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তো আমাদের অবস্থা এমন নয় তো, যে নৌকাতে উঠেছি, বাবা নৌকা নিয়ে এসেছে, সুন্দর সরোবর, তো পিছনে কলিযুগ, সঙ্গম যুগের পারে নৌকাতে উঠেছি, তো বইটা বাইছি কিন্তু नंगर लगानो আছে पुरानी दुनिया तरफ। तो बाबा ने कहा पास्ट इज पास्ट, ज़्यादा सोचो नहीं तो आगे जा नहीं पाएंगे। तो बाप कहते हैं कितनी महीन बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। ये सूक्ष्म बात, घाड़ घुरिए পিছনে কেন দেখছি, যাতে অল্পকালের সুখ যা আমাদের এই পার থেকে ওই পার নেবে না, आरो ये दुनियाते आरो लटके रखबे। तो कलियुग तरफ लटका हुआ है ना, तो बाप कहते हैं कांद उस तरफ क्यों करते हो, वो पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुराना दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है ना, पुराना दुनिया से वैराग्य करो। इसीलिए तो बाबा का स्पेशल बात हमें समझाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। जब तक हमारा भक्ति वैराग्य नहीं होगा तो ये पुराना दुनिया से भी वैराग्य नहीं होगा। विचार करो, ऐसी अवस्था हमारा है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটে গেছে, আমার করণীয় বিষয় আমার সামনে আসছে, হয়তো আমি জানি না কবে কোথায় করেছি। হয় দুঃখের হলেও অবশ্যই মেনে নিতে হবে, সুখের হলে তো মেনে নিতে কোনো কঠিন হয় না। তো এটাই মনে রাখতে হবে, যাই কিছু দৃশ্য, যাই কিছু অবস্থা, যাই কিছু परिस्थिति, पास्ट इज पास्ट। बीती को चितवो नहीं, पुराना दुनिया में कोई आशा नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंचा आशा रखनी है। क्या रखना है, हम चले वैकुंठ सुखधाम। इसके लिए उपयुक्त तो हमें बाबा बनाते हैं। तो बाबा का प्यार, तो बाबा हमें लाडला बच्चा कहते हैं, तो बाबा का ये समझानी तो हमें अच्छा रीति समझना चाहिए। तो बुद्धि में सुखधाम ही याद रखना चाहिए। सुखधाम कैसा होगा, ये सरोवर, इसको क्रॉस करने से ही सुखधाम मिलेगा। छोटा सा ज़मीन पर हमारा दुनिया बनेगा। तो ये भी बाबा ने आइडेंटिफाई करा दिया, दिल्ली में तुम्हारा स्वर्ग दुनिया बनेगी। तो पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए, एखाने तो नरक, एखाने स्वर्ग दुनिया। परंतु बच्चों की पीठ मुड़ जाती है। प्रथमे तो बाबा बोलছে घाड़ घुरे जाए, এখন বলছে পিঠও তোমার ঘুরে যায়, মানে পিঠ চলে যায় সত্যযুগের দিকে, মুখ চলে যায় নরক দুনিয়ার দিকে। তো এমন অবস্থা থেকে আবার ঘুরিয়ে আনা, टोटल 90 डिग्री व 360 डिग्री, तो ये हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा तो दुखदायी अवस्था है, जो बाबा बार बार हमें समझाते हैं। तो तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है ना। तो ये समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है। कोनो पथिक यदि दाঁড়িয়ে যায় তার পথ কিন্তু ফুরাবে না। तो कहाँ देखना नहीं, ওটা साइड सीन, आशेपाशेও देखते नয়, পিছনে तो मोटे ही नয়। तो बीती को याद नहीं करना है, आगे कहते हैं, बाप कहते हैं आगे बढ़ते चलो, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अडल स्थिर अवस्था बना पाएंगे। तो ये हमारा सबको बनाना चाहिए ना। दुनिया अभी बहुत तो अभी नाजुक अवस्था, चारों तरफ से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन आता है, उस तरफ देखते रहेंगे तो पुराना दुनिया के मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। नंबर बार तो है ना, सबाई तो एमनटा नয়, এটাও বাবা বলছে সকলে তো পুরুষার্থী। তো অনেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তো অনেকেই হয়তো দাঁড়িয়ে আছে,
হয়তো পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে, কেউ पेट घुरिए देखছে। तो आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, काल गिरा तो एकदम तो हट जाती है। तो ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती हैं जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने समझाया। এমনই আমাদের জীবনে গ্রহচারী এসে যায় তো মুরলির প্রতিও আমাদের ইন্টারেস্ট চলে যায়। এটা তো এক ধরনের কথা। तो विचार करो, ऐसे होता है ना। तो अगर है तो इसको चेंज करना है। बाबा हाथ नहीं उठाएंगे तो सच्चा दिल से बाबा को हम तो हमारा चार्ट देते हैं। तो इसीलिए बाबा हाथ नहीं उठाते हैं। तो आपने मन ही मन विचार करो। ऐसा होता है ना, बाप कहते हैं अभी संगम पर खड़े हो तो रुक आगे रहना चाहिए। रुक लक्ष्य तो आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। একটা নতুন মোবাইলও যখন আমাদের খুশি জেনারেট করে, সত্যযোগ জেনারেট করবে না। तो अब बाकी तो बहुत समीप किनारे पर खड़े हो, कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आता है। तो आवाज़ करो तो झट वो सुनेंगे। বাইরে আমরা ঘুরতে গেলে যখন বাড়ির কাছাকাছি আসি তখন ঘরের সামনে গাছ, তো ঘরের সেটিং সব কিছু মনে পড়ে, যেন ডাক দিলেই যেমন সবাই শোনে। तो नज़दीक अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करो तो देवता आ जाता है। बाबा कहते इतना सुंदर स्थिति बनाओ, याद करो देवता आ जाएंगे। इतना এতটাই কাছাকাছি আমাদের এসে যাওয়া উচিত। तो आगे थोड़ी ही आते थे, सूक्ष्म बतन में শ্বশুর ঘর বলে तो आते थे क्या। सूक्ष्म बतन সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। এখন যখন সূক্ষ্ম বতনে চাই তখন এই ব্রাহ্মণ ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্ম বতনে যায়, দেবতারও এখানে আসে। তো একটা এখানে কি হয়, তো স্নেহ মিলন। तो बाबा कहते हैं तो अब तो पियोर घर और শ্বশুর घर वाले जाकर मिलते हैं। আমরা বাবার ঘরের আর সত্যযুগে দেবতারা শ্বশুর ঘরের, তাদের একটা কোঅপারেশন হয়। तो फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं सूक्ष्म बतन में हमारा कितना तो संगम युग का कितना सुंदर स्नेह मिलन होता है। बुद्धि युग पिछाड़ी में हट जाती है। बाबा कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस पार जाना है। तो मौत भी नज़दीक होता जाता है, कोई गारंटी नहीं है। आज ये बीमार है, काल वो है। और हॉस्पिटल वाले तो एक पेशेंट तो अगर मिले तो उसको तुरंत इतना खर्चा होगा, आपको ये हुआ है, ये टेस्ट कराना है, ये करना है, तो दुखी कर देता है। तो बाबा कहते हैं तो मौत भी नज़दीक होता जाता है। बाकी सिर्फ तो कदम भरना है। तो नाव किनारा आती है ना, तो उस तरफ कदम उठाना होता है ना। একদিকে পুরানো দুনিয়া বিভিন্ন বিষয় বিকার আমাদেরকে আকর্ষণ করছে, একদিকে বাবা নৌকা নিয়ে তো এই সরোবরে এপার থেকে ওপার করতে বাবা নিজে মাঝি হয়ে এসেছে, শুধু পাটা নৌকাতে তুলতে হবে। तो तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारा पर। तुम्हारी बुद्धि में है ना, क्या है बुद्धि में है, आत्माएं जाती हैं अपनी स्वीट होम। ये कॉस्ट्यूम यहाँ पड़ा रहेगा, ये याद रखने से भी खुशी तुमको अचल अडल बना देगी। सतयुग में कंचन का यह शरीर मिलेगा, यह विचार सागर मंथन करते रहना है। कितना सुंदर हमें बॉडी मिलेगा, कितना हमारा संस्कार सुंदर मिलेगा। यह है बुद्धि की बात। तो हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक शर्ट तो किनारा पर हम खड़े हैं, बाकी थोड़ा समय है। तो इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। मैं आत्मा, बाबा परमात्मा, तो ये पुराना हो गया। तो याद का नया तो ये अवस्था क्रिएट करना चाहिए। तो ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, बाबा आज कितना सीरियस मोड में है। दिल पर हाथ रख के कहो, देखो बाबा जो कहते हैं कि अपने को
अपने को ऐसा समझो तो हम नज़दीक किनारा पर खड़े हैं। আমাদের স্থিতি, আমাদের অবস্থা এতটুকু এসেছে, এতটাই নিশ্চিত যে আমরা পা রাখলেই নৌকোতে, না অনেক দূর পিছনে পড়ে আছি। तो ऐसी अवस्था हमारी है। तो बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते हैं। तो इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। एटर मध्य आछे सब थेके तो आनंद, खुशी, मजा, बस हमको जाना है। तो यो है तो सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यो चक्र याद रखो। कोथाय बुद्धि अटके गेछे, अटके गिए निजे अटके जाएनी तो तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारा पर खड़े हो। तो कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, फुर्सत मिला तो ये चक्र घुमाना चाहिए। तो ऐसे तो है नहीं। बाबा ने चार्ट देखा, बाबा ने ये भी रिजल्ट बता दिया, 5-10 मिनटों हमारे 8 घंटार मध्य 5-10 मिनटों हमारे एखोनो तो हच्छे ना बा है ना। बाबा भिन्न भिन्न तरीका से समझाते हैं, आत्मा की तो बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, तो बुद्धि में यो याद क्यों नहीं रहना चाहिए। अभी हम किनारा पर खड़े हैं ना, बार बार बाबा, कितना बार बाबा ने ये लाइन दोहराया। तो यो किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है। एटाई जे हलो सेफ जाएगा। जेमन छोटो बच्चार मायर कुल हलो सेफ। और संगम जुग, सत्य त्रेता द्वापर कली जुग पेरिए संगम जुगे बाबार এই মুরলী अर्थात श्रीमद के धरा और बाबार कोले तो आश्रय खोजे नेওয়া। तो एटाई हलो बुद्धिमानेर कथा बा काज। जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारा पर खड़े रहो। तो जो मुआफिक चलते ही रहो। हते पारे ता एकटू एकटू करे एगिए जाच्छो, किन्तु दाड़िए थाकबे ना। तो क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते रहते हो। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। ये सुदर्शन चक्र है। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारा पर खड़ी रहना चाहिए। और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना हो। झंझट ये वर्ड भी हमें बहुत डीप में लेना चाहिए। झंझट में तो यहाँ तो बहुत ही है उम्र वाले। तो उम्र वाले तो ऐसा ही एमनी दुनियार हिसाबे तो कोनो झंझाटे थाका उचित नय। जे झंझाट आमार पुरुषार्थेर मार्ग पिछिए देबे, जेने शुने आमी झंझाटे आमी जड़िए जाच्छी। हयतो लोभ बा निजेके बुद्धिमान मने करा, एटा बुद्धिमान नय। झंझाट थेके बेरिये आसा। तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुराना दुनिया को छोड़ नए संबंध में अपना बुद्धि जुग लगाओ। शतजुगे हमारे परिवार केमन हबे, माँ केमन हबे, बाबा केमन हबे, घर केमन हबे। तो योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे काटेंगे। तुम जानते हो ना ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो इनका मॉडल कितना छोटा है, कितना विस्तार में हमें जाना है। 5000 वर्षों की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु तो किसको स्वर्ग याद तो आएगा क्या। ये मॉडल देखे हो बा बाबार मुरली शुने हो तो वही सत्ययुग याद आमादेर कतटुकु आमादेर काछे स्पष्ट, सीन कतटा आमादेर काछे स्पष्ट। तो वो तो क्या जाने स्वर्ग से। जो अजमेर में बनाया वो तो अज्ञानी है। तो समझते हैं, वो लोग कह देते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्षों के बाद आएगा। कलियुग रेगरी पहन रहा है, हमागुरी खत से बाप तुम बच्चों को समझाते हैं इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो आरो किछुदिन जाते बेঁচে যাই, किछुदिन जाते आमादेर खरपोश चले, तार जन्य तो प्लान बनाई।
दुनिया खत्म होने वाली है, तार জন্য কি প্ল্যান বানিয়েছি। तो अब जाना है अपनी पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जो मिसल चलता है, चलना है। मंजिल कितनी बड़ी है ना, तो बाप तो मंजिल को जानते हैं, बच्चों को भी तो विज़न देते हैं। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, बाप दादा कहते हैं तो यो वो समझाते हैं, क्या यो नहीं समझ सकते। तो बाबा ये भी सुंदर रीति हमें समझाते हैं, ब्रह्मार स्थिति कोथाय। तो बाबा बोलছে तो यो भी सुनते तो है ना, मुरली चलाते हैं, ब्रह्मा का कान पहले सुनते हैं, बाद में हमको सुनाई देते हैं। तो क्या यो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा क्या। ब्रह्मा बाबार যুগযুক্ত অবস্থা কত চিত্র আমরা দেখতে পাই। যজ্ঞকে দেখিনি, যজ্ঞের অনেক বিষয় তো আমাদের জানা আছে। तो ब्रह्मा बाबा केमन पुरुषार्थ करेছেন। तो बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं तो बाबा बहुत पिछाड़ी में है। ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा শোনাচ্ছে, শিব বাবার সঙ্গে আমাদের কম্পেয়ার করে বাবা বলছে, এমনটা ভেবো না ব্রহ্মা অনেক দূরে আছে, তো ও কোণের মতো চলছে আর আমি বুঝিয়ে যাচ্ছি ব্রহ্মা পুরুষার্থ করে অনেক পিছনে পড়ে আছে। না, बाबा बोलছে कि अरे ये तो दुम लटका हुआ है, तो फिर पिछाड़ी में कैसा होगा। ब्रह्मा लेजेर मतो दुम, ये भी हमें अनुभव कराना है। ब्रह्मा शिव बाबार संगे लेजेर मतो आटके आछे। हनुमानेर तो लेज आछे, लेज माने कि शरीर संगे आटके थाके। तो ब्रह्मार तो शिव बाबार शरीर नहीं, किन्तु पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबार शिव बाबार लेजेर मतो आटके आछे। तो उन्हीं की करे पिछने अटके थकते पारे। तो ये सब बात गुज्जु बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाप के पास 2-2 वर्षों के बाद आते हैं, ये भी बाबा ने सीरियस बात बताया है। तो 2-2 वर्षों मधुबन जाना, बाद जाना, तो ये भी क्या है, मर्यादा नहीं। पुरुषार्थ हमारे अनेक ढीला हो जाए, जो भी हो। वर्ष जाना चाहिए। कोई तो 6 महीना भी एक बार जाते हैं, एक बार बाबा मिलन में जाते हैं, एक बार भट्टी में जाते हैं। तो क्या ये याद होगा कि हम नज़दीक किनारा पर खड़े हैं। 2-2 बछर बादे यदि मधुबने जाई, ওই स्थिति কি আমাদের থাকবে। तो अभी जाना है, एमन स्थिति अनेक दिन गैप दिए मधुबन गेले कखनो এই स्थिति আমাদের তৈরি হবে না। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए, क्या चाहिए জীবনের আর কি আছে যার জন্য আটকে যাচ্ছি। করোনার কালে তো তখন রেস্ট্রিকশন ছিল, এখন তো কোনো রেস্ট্রিকশন नहीं। तो ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि तो वो 22 सत प्रधान है, फिर राजों से तमों में आ जाता है। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना है। सत्ययुगे हमारे डबल शीरताज प्राप्त হবে। আসলে डबल मकुट माने कि देवताদের পিছনে पवित्रतार एक लाइट एमनितेই থাকবে, এটা কোনো স্থূল বিষয় নয়। तो भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का जुग वहाँ लगा रहे। तो इनसे भी तोड़ निभाना है, जो इस कुल के होंगे वो निकाल आएंगे। ये भी चेतावनी बाबा ने दिया। तो हमने क्या प्लान बनाया, सेपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर तो आगे पीछे आएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म क्यों ऐसे गेছে, क्यों आसबे, क्यों अवश्य आसबे। आगे पीछे आना है। तो पीछे आने से तो क्या होगा, ये भी बाबा ने बताया। पिछाड़े में आने वाली भी आगे वालों से दिखे जाएंगे। तो ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। ये पुराने से तीखी कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। আমাদের মধ্যে ঢিলামি চলে আসবে, আর নতুন যারা আসবে তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়বে, তারা আমাদেরকে ছেড়ে এগিয়ে যাবে। সে লড়াই মানে দৌড় হলো তো কচ্ছপ আর খরগোশের। আমরা সবাই জানি কচ্ছপ ফার্স্ট হয়ে গেছে,
तो ये अलबेलापन हमारा नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो बल देरी से आए हैं तो याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा दौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। तो भोजन तो खाना ही है और क्या। बाबा ने कहा जितना जमाया कमाया तो जो नौकरी करने वाले उनका तो गारंटी है पेंशन मिलेगा। जो व्यापारी लोग तो उनका भी तो कोई प्लानिंग होना चाहिए। तो जो माल मिल्कियत आते रहेंगे तो हम खाते रहेंगे और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। तो यह तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं अपना ससुर घर। एक और जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा बहुत चढ़ जाता है ना। तो तुमको बहुत मेहनत करनी है। तो इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। 84 जीवनेर सबसे के अमूल्य अंतिम जन्म, इसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। तो याद की यात्रा में बहुत मजा आना चाहिए। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बना है ना, शास्त्रों में दिखाते हैं, कहानी में दिखाते हैं। तो और बाबा ने चेतावनी दिया भंबरों को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। तो ये कहानी बना दिया। तो बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि तो इसको कहा जाता है। बाबा ने कहा बुद्धिते एटाई जाते विचार चलते থাকে এই দুনিয়া চোখের সামনে, এই দুনিয়ার গরিমা, এই দুনিয়ার এত অহংকার, সায়েন্স এই চোখের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। तो बस अब किनारा पर हम खड़े हैं। तो नाव में उठना है, कदम रखना है। तो हम जा रहे हैं। लास्ट विजन हलो আমরা चले যাচ্ছি ससुर घर। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी जोगो बल से बढ़ती है। तो तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वो आधा कल्प चलती है। तो इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे, उनका बच्चा बनेंगे, उनका परिवार का मेंबर बनेंगे। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। अपना जीवन को बजी रखो। कोई खिलाड़ी है ना तो सारा रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो इसका नाम भी बहुत हेडलाइन में आता है। तो बाबा कहे ये वो तो खिलाड़ी का बात छोड़ो, दुनिया का मान शान है। तो हमारे तो बाबार काछे तो रिकॉर्ड। तो सारा दुनिया को चेंज कर देना चाहिए। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तो एक चुटकीतेই दुनिया परिवर्तन कर দিতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে ঠেকে গেছে। कल्प कल्प बाबा करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग तो प्यार से लगाओ। ऐसा नहीं मजबूरी से, प्यार से बुद्धि योग बाबा का प्रति, नया दुनिया का प्रति, अपना घर का प्रति लगाओ। नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबर पर पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो ना। अभी तो हम किनारा पर खड़े हैं। बाबा ने ये लाइन कितना बार मुरली में दोहराया। तो फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। घर घूरिए, पीठ घूरिए, तो आगे कदम बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसीलिए कछुआ का भी मिसाल है। यो मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। कच्छपेर उदाहरण। तो सन्यासी तो है ही हर जोगी। तो वो तो राजयोग सिखला ना सके। तो वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करती है। इसीलिए ये भी जुक्ति से लिखो, सन्यासीদের इंसल्ट करे ना। तो एमनও কিছু যদি ম্যাটার আমরা তৈরি করি তাহলে যাতে সন্ন্যাসীদের কোনো বা কোনো বর্গের যাতে কাউকে ইনসাল্ট করা না হয় এবং বাবা বলেছে এই কথাটা জানে আমরা সামনে রাখি। এবং মেইন কথা বাবা আজকে কয়েকদিন ধরে বলছে। তো কাউকে বোঝাতে গেলে তো বাবার পরিচয় সবচেয়ে আগে, তাছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া কোনো উচিত হবে না। तो इसीलिए बाप बिगड़ राज्य को सिखला ना सके। तो
इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, सन्यासीদের जाते কোনো রকম इंसल्ट ना हो, इनडायरेक्ट बोले दाओ। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे साप मरे लाठी भी ना भांगे। तो कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, तो परंतु बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ, नया दुनिया से लगाओ। तो तुम जानते हो अभी हम एक ही मत पर हैं, अव्यभिचारी याद, एक बाबा ही रखने वाला। तो यह है देवी देवता बनने की मत। तो इसको भी अद्वैत मत कहा जाता है। तो बच्चों को देवता बनना है, कितना बार तुम बने हो, अनेक बार है ना। अभी तुम संगम पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, तो अब तो जाना है। और दृढ़ता से हमें माइंड सेट करना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों देखना है, देखते हुए भी अभी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो, पिछाड़ी में कुछ नहीं, इग्नोर करो, मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। एक ही स्कूले पढ़ाशोना करे तो क्यों ऊपर क्लासे चले जाए, क्यों आबार এই ক্লাসেই থাকে। তো ওইটাই বাবা বলছে যে এখানে পুরুষার্থ করে যদি যেতে না পারো তাহলে অনেক সময়ের জন্য শান্তিধামে বসে থাকতে হবে, জীবন মুক্তি অনেক পরে হবে। तो वंडरफुल बाबा का बात है ना। तो ये पता था कि पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है, এতটুকুই পুরুষার্থ। তো এত কিছু বিস্তারের থেকে নিজেকে শুধু बिंदुई মনে करा। तो इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है, 5000 साल का जो चक्र फिरता रहता है। तो बहुत वंडरफुल है। तो वंडर कहो तो छोड़ना ही पड़ता है, तार आगे जावाना है। कुदरत ये तो छोट्ट स्टारेर मध्य आत्मार मध्य কিভাবে 5000 বছর রেকর্ড আছে। যেমন আজকাল একটা চালের মধ্যে অনেক অনেক ওয়ার্ড লেখে, এটা ক্রেডিট, ধানের মধ্যে লেখে, চালের মধ্যে লেখে। तो बाबा बोले कि ये आत्मार मध्य कत लेखा। तो ये विचार सागर मंथन करना और ऐसा दोष नहीं देना आमार कपाले छिलो ना, मैंने नवा। बाबा का सुंदर बात, बाबा ने क्या कहा, पास्ट इज पास्ट। अच्छा, मीठे मीठे शिखिल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एकरस रखनी है। नंबर 2, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारा पर खड़े हैं, घर जाना है। गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। कत सुंदर धारणा बाबा दिएছেন।
অনেক সময় কি বলি, সংসারের খেলাটা জমে গেছে। তো এটাও ঈশ্বরীয় নেশায় তো এতটাই আমাদের মগ্ন থাকতে হবে যাতে আমাদের অবস্থা জমে যায়। তো কোনো প্রকার গাফিলতি চলবে না। আর এই ভিশন তৈরি করা যে নৌকা এসেছে এই সরোবর সামনে, পিছনে আছে কলিযুগ, আমরা কিনারায় দাঁড়িয়েছি, সিলেক্টেড বাচ্চা, সিলেকশন হয়েছি আমরা, এখন নৌকায় পা রাখব এবং আমরা যাচ্ছি ওই পারেই শতযুগ দুনিয়া। তো এক বাবাকে দেখেই নিজের অবস্থা, অন্য কিছুতে নয়, অন্য কিছুকে দেখলেই তো পিছন টানবে আমাদেরকে। আর পথিক হিসাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া নয়, আর দাঁড়িয়ে যাওয়া নয়, মুখ फिरे पीठ फिरे ताकानो नय। ये दो विजन, ये दो धारणा हमें क्रिएट करना है। वरदान, सर्वों के दिल का प्यार, सर्वों के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निःसंकल्प भव। সকলে আমাকে ভালোবাসবে তখন যখন এই তিন বিষয় আমার মধ্যে আসে, ন্যারে, প্যারে, নিঃসংকল্প, পাস্ট ইজ পাস্ট। তখনই সকলের প্রেম ভালোবাসা, তখনই বাবা বলছে কি আমার থেকে সার্টিফিকেট पावे। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारा रहने की गुण व निःसंकल्प रहने की विशेषता है, तो अर्थात जिन्हें यो वरदान प्राप्त है सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। तो वे अपनी शक्तिशाली निःसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। तो उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती रहती है। ये वरदान का अर्थ भी हमारा जीवन में लागू होना चाहिए। तो सकलेर प्रिय आमरा कि करे होते पारी, तो तार वरदान व्याख्या बहुत सुंदर रीति से बाबा ने समझाया। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजाने की चाबी है। एक बाबा दिल से कहो, सर्व खजाने की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो, चाबी को संभाल कर रखो, যত্নে রাখো, হারিয়ে যাতে না যায়। কোথায় রেখেছি মনে নেই, সকল খাজানার চাবি। अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विधिही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। एक सेकंड में चोले से, शरीर से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं। टाइट जामा कपड़ पड़ले खोलते किंतु कष्ट। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। तो हल्के होने से अलग ही सहज ही अलग हो जाता है। तो वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। इजी যেমন ঢেলে ঢালা জামা কাপড় ব্রাহ্মণ জীবনের पसंद, टाइट नয়। तो इसी प्रकार हमारा संस्कार भी इजी और अलर्ट रहना चाहिए। बाबा देख रहा है, कुछ भी करो बाबा देख रहा है। तो आज का हेडलाइन, मीठे बच्चे तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो, अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है।